Though I appear as one girl, one person who is 5 foot 2 inches tall, if you include my high heels, it means I'm 5 foot only. I am not a lone voice. I am many. I am Malala, but I'm also Shazia. I'm Kainat Somro. I am Mozoon. I am Amina. I am those 66 million girls who are deprived of education. And today, I'm not raising my voice. It is the voice of those 66 million girls. Sometimes people like to ask me, why should girls go to school? Why is it important for them? But I think the more important question is, why shouldn't they? Why shouldn't they have this right to go to school? Dear brothers and sisters, today, in half of the world, we see rapid progress and development. However, there are many countries where millions still suffer from the very old problems of war, poverty, and injustice. We still see conflicts in which innocent people lose their lives and children become orphans. We see many people becoming refugees in Syria, Gaza, and Iraq. In Afghanistan, we see families being killed in suicide attacks and bomb blasts. Many children in Africa do not have access to education because of poverty. And as I said, we still see girls who have no freedom to go to school in the north of Nigeria. Many children in countries like Pakistan and India, as Kailash Satyarthi mentioned, many children, especially in India and Pakistan, are deprived of their right to education because of social taboos, or they have been forced into child marriage or into child labor. One of my very good school friends, the same age as me, who has always been bold and confident girl, dreamed of becoming a doctor. But her dream remained a dream. At the age of 12, she was forced to get married. And then soon, she had a son. She had a child when she herself was a child, only 14. I know that she could have been a very good doctor, but she couldn't because she was a girl. Her story is why I dedicate the Nobel Peace Prize money to the Malala Fund to help give girls quality education everywhere, anywhere in the world, and to raise their voices. The first place this funding will go to is where my heart is, to build schools in Pakistan, especially in my home of Swat and Shangla.
village, there is still no secondary school for girls. And it is my wish and my commitment, and now my challenge, to build one so that my friends and my sisters can go there to school and get quality education, and they get this opportunity to fulfill their dreams. This is where I will begin, but it is not where I will stop. I will continue this fight until I see every child in school. Dear brothers and sisters, great people who brought change, like Martin Luther King and Nelson Mandela, Mother Teresa and Aung San Suu Kyi, once stood here on this stage. I hope the steps that Kailash Satyarthi and I have taken so far and will take on this journey will also bring change, lasting change. My great hope is that this will be the last time. This will be the last time we must fight for education. Let's solve this once and for all. We have already taken many steps. Now it is time to take a leap. It is not time to tell the world leaders to realize how important education is. They already know it. Their own children are in good schools. Now it is time to call them to take action for the rest of the world's children. We ask the world leaders to unite and make education their top priority. 15 years ago, the world leaders decided on a set of global goals, the Millennium Development Goals. In the years that have followed, we have seen some progress. The number of children out of school has been halved, as Kailash Satyarthi said. However, the world focused only on primary education, and progress did not reach everyone. In year 2015, representatives from all around the world will meet in the United Nations to set the next set of goals, the Sustainable Development Goals. This will set the world's ambition for the next generations. The world can no longer accept that basic education is enough. Why do leaders accept that for children in developing countries, only basic literacy is sufficient when their own children do homework in algebra, mathematics, science, and physics? Leaders must seize this opportunity to guarantee a free, quality, primary and secondary education for every child. Some will say this is impractical, or too expensive, or too hard, or maybe even impossible. But it is time the world thinks bigger. Dear sisters and brothers, the so-called world of adults may understand it, but we children don't. Why is it
that countries which we call strong are so powerful in creating wars, but are so weak in bringing peace. Why is it? Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard? Why is it? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? We are living in the modern age, and we believe that nothing is impossible. We have reached the moon 45 years ago, and maybe we'll soon land on Mars. Then, in this 21st century, we must be able to give every child quality education. Dear sisters and brothers, dear fellow children, we must work, not wait. Not just the politicians and the world leaders. We all need to contribute. Me, you, we. It is our duty. Let us become the first generation to decide to be the last. Let us become the first generation that decides to be the last, that sees empty classrooms, lost childhoods, and wasted potentials. Let this be the last time that a girl or a boy spends their childhood in a factory. Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that a child loses life in war. Let this be the last time that we see a child out of school. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. Let's begin this ending now. Thank you so much. Thank you. बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें और शायद इन ख्वाहिशों के ज़रिए जिस सपनों को लेकर जिक्र मलाला ने किया वो शायद सियासी तौर पर बड़े मुश्किल सवाल खड़ा भी कर सकती है। शिंगला में एक स्कूल बन जाए, पक्का स्कूल। टैंक बनाना आसान हो चला है, स्कूल बनाना मुश्किल हो चला है। तालीम क्यों नहीं दी जा सकती? ऐसे ऐसे सवाल हैं जो सवाल कहीं ना कहीं सियासत को चुभने चाहिए और उस दिशा में बढ़ने चाहिए। लेकिन क्या सियासी तौर पर और इस मौजूदा वक्त में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बाज़ार का दौर है, उसमें ये सारे सवाल और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान का ये सवाल और दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म। स्वामी अग्निवेश जी, जो बात कही गई मलाला के ज़रिए, ज़रा पाकिस्तान के संदर्भ में ज़रा हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि वो बहुत छोटी ख्वाहिशें थी जो एक बेसिक राइट्स होते हैं, और उन राइट्स की बात वो कर रही थी कि तालीम मिलनी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, हक मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है और अब एक नोबेल मिलता है तो नोबेल की मान्यता तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यही है कि उस दिशा में जो सबसे बेहतरीन काम कर रहा होता है उसे मिलता है।
सवाल घूम के फिर वही आ रहा है कि एक पाकिस्तानी नागरिक को, और उसने खुले तौर पर ऐलान किया, पहले पश्तून, पहले ही पाकिस्तानी, जिसे नोबेल का पीस पुरस्कार मिला, ये पाकिस्तान के भीतर कहीं एक मैसेज दे पाएगा, आपको लगता है? देखिए, पाकिस्तान और सारी दुनिया के और औरतों का, लड़कियों का नाम उन्होंने लिया, नाइजीरिया तक के बोको हराम की जो शिकार हैं, और उसने पूरी दुनिया को अपने एक तरह से साथ लेते हुए तमाम उन लड़कियां या बेटियों के लिए एक आवाज़ उठाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छू गया उसकी बातें जितनी भी कही उसने। और कैलाश सत्यार्थी जी ने भी जो एक बात बुनियादी तौर पे कही थी, 1 हफ्ते का यदि युद्ध सामग्री यदि समाप्त कर दिया जाए तो सब बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। तो ये सरकारों के लिए और हमारे समाज के जो लोग भी करता धरता है उनके लिए मलाला का भाषण भी, कैलाश जी का भी एक काफ़ी इशारा है समझने के लिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। बच्चों की खुशहाली यदि इसको इंश्योर नहीं कर सकती हमारी सारी दुनिया की ताकतें, तो फिर लानत है ऐसी दुनिया को, ऐसे दुनिया चलाने वालों को। मुझे याद आता है वाजपेयी जी कि मैं जब वाजपेयी जी लौट के हमारे दूसरे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना लौट के आए, तो मैंने उनसे पूछा, हम लोग एक ही पार्टी में थे उन दिनों, वो विदेश मंत्री थे हमारे, तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? तो थोड़ी देर सोच करके फिर कह लगे, स्वामी जी, छोटे छोटे बच्चों को मैंने, और मुस्कुराते खेलते और लाल लाल गाल, और अटल जी ने गाल मुंह फुला के कहा हप हप, ये जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा देखिए कितनी बड़ी बात आपने कही है कि एक देश के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। ये 1900 मतलब बहुत पहले का दौर था, आज तो काफ़ी कुछ चाइना आगे निकल गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के अधिकार, बच्चों के उनको बालपन को यदि हम लोग सचमुच में सुरक्षित कर सकें, उनके इनोसेंस को बचा सकें, और इस प्रकार के जो तालिबानी और कट्टरपंथी और दो बांटने वाली नहीं, आपने अच्छा जिक्र किया। हम ये बताएं आपको कि हम जी हमें लगता है कि जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वात में एक इलाका मिंगोरा है, और मिंगोरा में इस वक्त एक फंक्शन हो रहा है, और उस फंक्शन में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मलाला का गांव है उसका नाम शांगला है, क्योंकि उनके वालिद का ताल्लुक शांगला से है। शांगला जो है वो मिंगोरा से भी आगे है, बहुत दूर है, ये पहाड़ों के अंदर एक छोटी सी जगह है। तो हमारी जो DSNG है वहाँ पर पहुँची हुई है, थोड़ी देर पहले हमने उनके साथ कनेक्ट किया था। अभी हमारे कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे ले जाएं। वहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट महमूद अली साहब और उनके साथ हमारे कैमरामैन भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब तक हम कनेक्शन नहीं होता तो मैं एक सवाल वापस आपसे पूछना चाहूँगा। कैलाश सत्यार्थी साहब की जो स्पीच थी उसमें भी बड़ी अच्छी बातें थी। उन्होंने एक वैदिक सेइंग का हवाला दिया, हिंदी में उन्होंने ये कहा, जिसका मैंने इंग्लिश में जो तर्जुमा किया है पता नहीं सही है या गलत है, कि लेट अस ऑल प्रोग्रेस एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये जो लेट अस ऑल प्रोग्रेस एंड मूव फॉरवर्ड है, तो ये कैलाश सत्यार्थी साहब जो कह रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान और इंडिया राइट डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है सीधे हम पहले कैलाश सत्यार्थी के घर लिए चलते हैं। वहाँ पर हमारे संवाददाता चूँकि मौजूद हैं, और हमको लगता है वो जश्न और उस माहौल को भी देखना चाहिए। हमारे संवाददाता के पास हमारी आवाज़ आ रही है, अमित? जी प्रसून जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। हाँ, लगातार हम बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान में भी इस वक्त देखे जा रहे हैं, और जो लोग वहाँ पर जो जश्न के साथ जुटे हैं, उनके जहन में क्या है जो कहा गया कैलाश सत्यार्थी के ज़रिए दोनों मुल्कों को लेकर कि अब नई स्थितियों में नई सोच, नए तरीके से एक आगे और साथ मिलकर आगे बढ़ने का जिक्र हुआ है, जो जवाब पाकिस्तान भी चाह रहा है, वहाँ पर लोगों की क्या राय है? देखिए प्रसून जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये न सिर्फ एक बहुत बड़ा मौका यहाँ इस परिवार के लिए है, विदिशा के लिए है, पूरे मुल्क के लिए है, बल्कि ख़ास बात ये है कि कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मलाला भी हैं जो साझा कर रही हैं ये बेहतरीन अवार्ड उनके साथ। और जाहिर है इस वजह से ये परिवार भी सोच रहा है इस बात को कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते अच्छे हों, और दोनों मुल्क एक साझेदारी में काम करें कि
किसी तरह से ये बच्चों को लेकर जो संदेश उन्होंने पहुंचाया है वो आगे पहुंचे और दोनों मुल्क से विचार करें। हमारे साथ उनके भतीजे उमेश जी हैं, पूरा परिवार है बल्कि यहाँ पर साथ में। उमेश जी, परिवार के अंदर क्या सोच बनती है जहां भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात होती है और दोनों मुल्कों के साथ मिलकर बात करने की बात होती है? आप हमारे परिवार के बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो हमारी शादी के कार्डों में मेरे चाचा के दोस्त चौधरी मुनव्वर सलीम का नाम छपता है, या सलीम भाई के यहाँ जब कोई शादी विवाह होता है तो छपता है। तो हम लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान की कोई बात नहीं है, हम तो एक ही समझते हैं। आपकी उनकी भतीजी हैं हमारे साथ, उनसे भी यही सवाल पूछते हैं। ये बताएं कि ये बात बिल्कुल आगे से हो रही है कि भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों का सवाल भी सामने आता है इस नोबेल प्राइज के साथ साथ, आप इसको किस तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तौर पर देखती हूँ, जैसे मलाला जी ने भी और चाचा जी ने भी संदेश दिया है कि भारत और पाकिस्तान वो भी बच्चों पर ही काम कर रही हैं, उनका पर्टिकुलर लड़कियों पर शिक्षा लड़कियों की, और चाचा जी का तो बचपन के लिए लड़कों की लड़की उनके लिए बराबर है, जो बच्चों को छुड़ाने के लिए। तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये दोनों को संयुक्त रूप से जो पुरस्कार दिया गया है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है भारत और पाकिस्तान के लिए। ये देखिए तो प्रसून जी, जो ये आने वाले वक्त में एक नई दिशा तय होगी। हम एक चीज जानकारी दे दें, ये मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ का जिला है विदिशा, जहाँ पर हम आपको ले गए थे। और ये सवाल मध्य प्रदेश के भीतर भी है, चूंकि उस पर लगातार काम होते रहा है। हमारे साथ चूंकि बच्चों को लेकर स्वामी अग्निवेश जी भी बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में स्वामी जी मेरे ख्याल से बाल मजदूर हैं जी, जहाँ भी गरीबी है वहाँ वाजपेयी जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वाजपेयी जी, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम आपको थोड़ी देर में हम आपको स्वाद लिए चलेंगे। हमारी जो वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट है महबूब अली, उनके साथ हमारा राब्ता हो गया है। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, आप अपनी डिस्कशन। चलिए हम भी ब्रेक के बाद लौटते हैं। हामिद मीर साहब, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। चलिए हम भी तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद।